آپ نے چین کی سب سے طاقتور باڈی کانگریس آف کمیونسٹ پارٹی CCP کی میٹنگ سے وائرل ہونے والی ایک ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی۔ اس میں صدر شی جن پنگ کے ساتھ بیٹھے سابق چینی صدر اور سیکرٹری جنرل مسٹر ہو جنتاؤ کو زبردستی ان کی کرسی سے اٹھا کر باہر بھیجا جا رہا ہے۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ تو سیٹ نہیں چھوڑنا چاہ رہے، لیکن انہیں زبردستی لے جایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا یعنی CPC میں سابق جنرل سیکرٹریز اور لیڈرز بہت اہم ہوتے ہیں، کیونکہ وہی نئے سیکرٹری جنرل مطلب پارٹی اور ملک کے سربراہ کے انتخاب میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تاریخی اور روایتی طور پر ان کا پارٹی پر اثر و رسوخ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ پس منظر ذہن میں رکھ کے آپ پارٹی کانگریس کے آخری دن کی کہانی سنیں۔ 22 اکتوبر 2022 6 دن جاری رہنے والی پارٹی کانگریس کا آخری دن تھا۔ 2300 سینئر ممبرز ووٹ کاسٹ کر چکے تھے اور اپنی رائے دے چکے تھے کہ اگلے 5 سال کے لیے کون سے ممبرز پارٹی اور چین کی قیادت کریں گے۔ اس کے بعد سب واپس آ کر اپنی اپنی سیٹس پر بیٹھ بھی چکے تھے۔ ہر کرسی کے سامنے میز پر ایک سرخ رنگ کی ڈائری پڑی تھی۔ اس میں کیا لکھا تھا کچھ پتہ نہیں، لیکن ایک کلوز اپ تصویر کے مطابق اس میں صدر شی جن پنگ کی ٹاپ کمیٹی کے ممبرز کے نام تھے۔ اب جیسے یہ سرخ ڈائری سب کے سامنے میز پر دھری تھی، ویسے ہی ہو جنتاؤ کے سامنے بھی تھی، مگر ہوا یہ کہ جیسے ہی ہو جنتاؤ نے اس سرخ ڈائری کو پکڑ کر پڑھنا چاہا کہ کون کون شی جن پنگ کی پولٹ بیورو اسٹینڈنگ کمیٹی یعنی ملک چلانے والی کور ٹیم میں شامل ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھے سابق ٹاپ نمبر 3 آفیشل لی جانشو نے ان کے سامنے سے ڈائری ہٹا کر اپنی طرف کھسکا لی۔ یہ حرکت چین کی اہم ترین کانگریس میں اہم ترین لیڈر کی توہین کرنے والی بات تھی۔ ہو جنتاؤ نے کوشش کی کہ وہ لی جانشو سے ڈائری واپس لے سکیں، لیکن انہیں ڈائری واپس نہیں دی جا رہی تھی، بلکہ مسٹر لی سابق صدر ہو جنتاؤ کے کان میں کچھ بتانے لگتے ہیں، اور اسی دوران وہ ہو جنتاؤ کے ریڈ پیپرز پر ہاتھ بھی رکھے ہوئے ہیں کہ کہیں وہ ان پیپرز کو پکڑ کر پڑھ ہی نہ لیں۔ اتنے میں ہوتا یہ ہے کہ ہو جنتاؤ کے دائیں ہاتھ بیٹھے صدر شی جن پنگ ایک نوجوان سیکیورٹی اہلکار کو بلاتے ہیں۔ اگلے سین میں چینی صدر اپنے سامنے موجود پیپرز پر ہاتھ مارتے ہوئے نوجوان گارڈ کو کچھ سمجھا رہے ہیں، جیسے انہیں کاغذات کے بارے میں کچھ بتا رہے ہوں۔ اس دوران بھی ہو جنتاؤ بار بار شی جن پنگ کے سامنے پڑے سرخ ڈائری والے کاغذوں کو بے قراری سے دیکھ رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ان کے لیے کوئی بہت ہی اہم چیز ہے، اتنی اہم کہ وہ اسے ہر صورت ایک بار دیکھ لینا چاہتے ہیں، لیکن انہیں ایسا کسی وجہ سے کرنے نہیں دیا جا رہا۔ اس کے بعد وہی نوجوان جسے شی جن پنگ نے بلایا تھا، وہ 80 سالہ ہو جنتاؤ کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس دوران ایک اور گارڈ بھی اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ 2 سے 3 منٹ کی اس مشقت اور مین ہینڈلنگ کے بعد سابق صدر ہو جنتاؤ آخر بے بسی سے چل پڑتے ہیں۔ شی جن پنگ کے ساتھ والی اگلی سیٹ پر بیٹھے فرد جس کے کندھے کو ہو جنتاؤ چھوتے ہیں، یہ چینی وزیر اعظم لی کو چانگ ہیں۔ یہ وہ سیاسی لیڈر ہیں جن کے کیریئر کی اہم ترین منزلیں ہو جنتاؤ کی مدد سے طے ہوئی تھیں، لیکن وہ اپنے سیاسی مینٹور کو مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہو جنتاؤ ساری کانگریس کے سامنے 19 سینئر موسٹ کمیونسٹ لیڈرز کی ٹیبل سے ہوتے ہوئے باہر لے جائے جاتے ہیں، لیکن کوئی ایک رہنما بھی ان کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتا۔ سب یوں بیٹھے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ 10 سال طاقتور ترین انسان رہنے کے بعد اس صورتحال کا انہوں نے شاید سوچا بھی نہ ہو۔ سچ کہتے ہیں طاقت کی جنگ میں اخلاق نام کا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ جب یہ واقعہ ہوا تھا اور کچھ ہی ویڈیو سامنے آئی تھی تو کسی کو بھی پوری بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن جب مکمل ویڈیو وائرل ہوئی تو ہر بات کی سمجھ آنے لگی۔ دراصل شی جن پنگ 10 سالہ دور اقتدار میں ہزاروں کمیونسٹ لیڈرز کے ساتھ ایسا کر چکے ہیں۔ حالانکہ شی جن پنگ وہ شخص ہیں جن کے خاندان کے ساتھ انقلابی لیڈر ماؤ نے یہی سلوک کیا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس تصویر میں ماؤ کا یوتھ ونگ جس شخص کے گلے میں پوسٹر لٹکا کر تذلیل کر رہا ہے، یہ انہی صدر شی جن پنگ کے والد ہیں۔ ان کے گلے میں جو پلے کارڈ لٹکا ہوا ہے
इस पर लिखा है कि पार्टी के दुश्मनों का साथी। हमारे कल्चर में आप समझें कि इनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया है। माओ के यूथ विंग की तरफ से और माओ की तरफ से चेयरमैन माओ, चीन के इनकलाबी लीडर भी अपने मुखालिफिन को तौहीन आमेज सलूक से गुजारा करते थे। उन्होंने अपने ख्यालात की मुखालफत करने वालों को जेलों में डाल दिया था। शी जिनपिंग का खानदान भी माओ की वफात तक जेल में रहा, लेकिन उससे भी हैरान कुन बात यह है कि जहां शी जिनपिंग के वालिद माओ के तरीक़ेकार के मुखालिफ थे, वहीं उनका बेटा बाप का फर्माबरदार होते हुए माओ के तरीक़ेकार को पसंद करता था। मगर इस वक्त शी जिनपिंग बहुत नौजवान थे, वो अपनी मर्जी अप्लाई नहीं कर सकते थे। सो माओ के मरने के बाद ये तरीक़ेकार खत्म कर दिया गया और उन्होंने किसी भी पार्टी रहनुमा की तजलील करना बंद कर दी। मगर अब शी जिनपिंग जब से इक़्तिदार में आए हैं, वो अपने एक एक ताकतवर मुखालिफ को ड्रामाई तरीके से बाहर निकाल चुके हैं। सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा तरीका है जिसकी मदद से चीन इतना पावरफुल लीडर सेलेक्ट करता है कि पूरे चीन में कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, इतना ताकतवर कि पूरी चीनी फौज भी उसके खिलाफ मार्शल लॉ लगाने का सोच भी नहीं सकती, जबकि वो खुद टॉप लीडर्स को आनन फानन जेल में डाल सकता है। और फिर यही निजाम चीन को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत भी बनाए हुए है। तो ये सवाल तो बहुत ही अहम है कि वो चीनी निजाम क्या है। आइए हम इस चीनी सियासी निजाम को देखते हैं। चीन अपने पॉलिटिकल सिस्टम को सोशलिस्ट डेमोक्रेसी कहता है। दरअसल चीन वन पार्टी सिस्टम के तहत चल रहा है, यानी आईनी तौर पर चीन में सिर्फ एक ही सियासी जमात मुल्क को गवर्न कर सकती है। एक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है और यही आईनी तौर पर मुल्क को गवर्न करती है। मुख्तसरन इसे सीपीसी या बाज औकात सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं। ये दोनों इसके नाम हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कोई और पॉलिटिकल पार्टी मौजूद ही नहीं। मौजूद हैं। पूरी 8 ऑफिशियल एक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज चीन में एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या किसी मगरबी मुल्क में हैं तो आपको लगेगा कि ये 8 जमातें शायद अपोजिशन इत्तेहाद हैं जो पॉलिसीज को चैलेंज करती हैं। नहीं, ऐसा चीन में नहीं होता। ये सब जमातें सिर्फ एडवाइजरी रोल अदा करती हैं, मशावरत दे सकती हैं। ये कायम ही इसीलिए हैं कि उन्होंने कानूनी तौर पर तस्लीम किया है कि वो सीपीसी की अथॉरिटी और लीडरशिप तस्लीम करेंगे। आपको मुख्तसरन बताएं कि ये जमातें चीन में इनकलाब के जमाने से कायम हैं, यानी 1950 से। आपको इल्म है कि चीन में माओ का इनकलाब 1 अक्टूबर 1949 में आया था। उसी वक्त कम्युनिस्ट चीन की बुनियाद रखी गई थी और नेशनलिस्ट शिकस्त खाकर ताइवान भाग गए थे। तब से ये 8 सियासी जमातें एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद किसी सियासी जमात को कायम होने की इजाजत ही नहीं दी गई। ये बहुत अहम बात आपके जहन में रहनी चाहिए, क्योंकि अगली बार जब कोई आपसे कहे कि चीन में वन पार्टी रूल नहीं है, वहाँ तो 8 दूसरी सियासी जमातें भी हैं, तो आप उसे बिला झिझक कह सकते हैं कि वो तो सिर्फ एडवाइजरी हैसियत रखती हैं। इनमें से कोई भी कभी भी मौजूदा सेटअप में चीन को गवर्न करने का सोच भी नहीं सकती। वो बहुत कम तादाद में हर कमेटी में होती हैं, लेकिन इतनी कम तादाद में कि वो कोई फैसला कुन रोल अदा नहीं कर सकती। अच्छा, तो सवाल पैदा होता है कि अगर चीन में कोई अपोजिशन ही नहीं तो फिर वहाँ अपोजिशन कौन करता है? जमहूरियत तो अपोजिशन के बगैर नामुकम्मल होती है, बल्कि हुकूमत भी। चीन में अपोजिशन के लिए अलग से जमात नहीं होती, बल्कि यहाँ पार्टी के अंदर ही मुख्तलिफ धड़े एक दूसरे की अपोजिशन होते हैं। लेकिन वो किस तरह अपोजिशन करते हैं, कैसे कैंपेन करते हैं, कैसे ख्यालात को चैलेंज करते हैं, ये सब कुछ खुफिया है। इतना खुफिया कि पार्टी के अंदर की बात बाहर बताना एक बहुत बड़ा जुर्म है। ऐसा करने वाले को उम्र कैद भी हो सकती है। अच्छा, अपोजिशन तो सीक्रेट हो गई, मगर पार्टी के गैर एलानिया मुख्तलिफ धड़ों में से कौन लीडर बनेगा? पार्टी का सबसे बड़ा सरबराह यानी जनरल सेक्रेटरी कौन होगा? ये कैसे चुना जाता है? ये समझने के लिए हम आपको
पार्टी का स्ट्रक्चर बताते हैं। एक दफा फिर अपने जहन नशीन कर लें कि चीन में हुकूमत और सियासी जमात अमली तौर पर एक ही चीज है, यानी जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का सरबरा मतलब जनरल सेक्रेटरी होगा वही मुल्क का सदर और फौज का सरबराह भी होगा। माओजे के जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा ओहदा चेयरमैन था, इसीलिए आप अक्सर माओ का नाम चेयरमैन माओ सुनते होंगे। लेकिन फिर उनकी मौत के कुछ अरसे बाद पार्टी ने ये ओहदा खत्म करके जनरल सेक्रेटरी के ओहदे को ही पार्टी का सबसे बड़ा ओहदा बना दिया। सो अब आला तरीन ओहदे पर किस पार्टी मेंबर को सिलेक्ट करना है, इसे समझने के लिए सीपीसी को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। चीन का कोई भी शहरी कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बन सकता है। अगर वो अच्छा पढ़ा लिखा है तो पार्टी मेंबर बनने के लिए उसे एक सख्त इम्तिहान से गुजरना पड़ता है जो एक अच्छा तालीम याफ्ता शख्स ही पास कर सकता है। आप यूँ समझें जैसे पाकिस्तान में CSS, वैसे ये सिस्टम चीन में 1000 साल से जारी है। कोई चीनी उस वक्त तक किसी सरकारी ओहदे पर नहीं आ सकता जब तक उसने सिविल सर्विस का इम्तिहान पास न किया हो। ये शर्त इतनी सख्त है कि बादशाह के बेटे से लेकर फकीर तक हर एक को सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करना ही होता है। उसके लिए 5 घंटे का एक इम्तिहान होता है जिसमें लॉजिक, मैथ्स, जनरल नॉलेज और बातचीत करने की सलाहियत, कम्युनिकेशन स्किल्स को परखा जाता है, उसका टेस्ट लिया जाता है। जब भी पार्टी को नए मेंबर्स भर्ती करने हों वो इम्तिहान की तारीख देगी और पास होने वालों को मेंबर बना लिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ पहले दर्जे के मेंबर होंगे। यही वजह है कि इस दर्जे के मेंबर्स बहुत ज्यादा हैं। पूरे चीन में सीपीसी के कुल मेंबर्स की तादाद 9 करोड़ 70 लाख के करीब है। इस तरह कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स की तादाद के लिहाज से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जमात बन जाती है। पहले नंबर पर इंडिया की बीजेपी है जिसके 2 साल पहले तक 18 करोड़ मेंबर्स थे। सीपीसी में खवातीन मेंबर्स की तादाद बहुत ही थोड़ी है, तकरीबन 1/3 या इससे भी थोड़ी कम। तो खैर ये करोड़ों पार्टी मेंबर्स जो इम्तिहान पास कर चुके होते हैं ये मुल्क में किसी भी सरकारी और पार्टी ओहदे के अहल हो जाते हैं। यहाँ से अगला दर्जा नेशनल काउंसिल के डेलीगेट्स का होता है जिन्हें 5 साल बाद वोटिंग के लिए जाना होता है। इसके लिए इन करोड़ों मेंबर्स में से सिर्फ 2300 के करीब सिलेक्ट किए जाते हैं। ये कैसे सिलेक्ट होते हैं ये भी एक राज है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी बंद दरवाजों के पीछे ये फैसले करती है। इसमें पार्टी के सीनियर लीडर्स अहम किरदार अदा करते हैं। ये 2300 लोग बेहद अहम इसलिए होते हैं कि यही नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स बनते हैं। हर 5 साल बाद जो पार्टी कांग्रेस होती है जिसकी एक कहानी हम शुरू में सुना चुके हैं, इसमें यही 2300 के करीब मुंतखब पार्टी मेंबर्स शिरकत करते हैं और फैसले करते हैं। इनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया तो नहीं मालूम, लेकिन इन्हें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से लिया जाता है। यानी इंटेलेक्चुअल्स में से कुछ लोग होंगे, कुछ असातिज़ा में से, कुछ शोबिस से, कुछ स्पोर्ट्स से, कुछ एंटरप्रेन्योर्स होंगे और इसी तरह दीगर फील्ड से एक एक 2-2 बंदे लिए जाएंगे। इन सिलेक्टेड 2300 डेलीगेट्स को हर 5 साल बाद द ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में भेजा जाता है। 2 स्टेप्स हो गए। ये अभी हम आपको सिलेक्शन का अमल बता रहे हैं कि किस तरह से सेलेक्ट होते हैं। तीसरे स्टेप में इन्हीं 2300 लोगों में से वोटिंग के जरिए 380 के करीब सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स मुंतखब किए जाते हैं। इन्हें कैसे और किन बुनियादों पर मुंतखब किया जाता है ये भी एक ओपन फार्मूला नहीं है। इसमें भी पार्टी सरबराह और सीनियर्स का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है। चौथे स्टेप में इसी सेंट्रल कमेटी में से 25 या 30 के करीब मेंबर्स का इंतखाब किया जाता है। ये सबसे ताकतवर और सबसे अहम लोग होते हैं जिन्होंने दरअसल मुल्क के अहम तरीन शोबों को चलाना होता है। आप समझें कि ये मिनिस्टर्स या हेड ऑफ प्रोजेक्ट्स बनते हैं। इन 25 लोगों की कमेटी को पोल ब्यूरो कहते हैं। साबिक सदर होजनताओ जिस रेड फाइल को पढ़ना चाह रहे थे इसमें इन्हीं पोल ब्यूरो मेंबर्स के नाम लिखे थे। अच्छा, अब इन पोल ब्यूरोज में से 5वें स्टेप के तौर पर एक बार फिर 7 या 9 अफराद की एक स्टैंडिंग कमेटी चुनी जाती है। ये टीम दरअसल जनरल सेक्रेटरी के हाथ और पांव होते हैं। अब आप पूछेंगे कि जनरल सेक्रेटरी कहां से आ गए, वो तो अभी सेलेक्ट ही नहीं हुए। जी हाँ, इन्हीं स्टैंडिंग कमेटी के 7 या
9 मेंबर्स में से एक जनरल सेक्रेटरी होता है। अब इन थ्योरी वो सब के बराबर ही होता है, लेकिन असल में वो सबका बॉस होता है। सारी ताकत उसी के हाथ में होती है। उसे भी वही स्पेशल डेलीगेट्स पिरामिड के दूसरे नंबर वाले मेंबर्स वोटिंग करके मुंतखब करते हैं। जब जनरल सेक्रेटरी सेलेक्ट हो जाता है, पार्टी कांग्रेस खत्म हो जाती है, तो अगले साल होने वाली नेशनल कांग्रेस में चीन का नया सदर भी चुना जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही नाम भेजा जाता है, जो कि सीपीसी का जनरल सेक्रेटरी होता है। नेशनल कांग्रेस के पास इस एक शख्स को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं होता, यानी ये एक रबड़ स्टैंप बॉडी होती है। ये तो हो गई वो बात जो सामने है, ऑन पेपर है। आप इस पिरामिड को देखें तो लगता है कि इसमें फिल्टर होकर इम्तिहानों और मुश्किलात से गुजरकर ऊपर तक एक प्योर और सबसे काबिल शख्स ऊपर आता है, लेकिन दरअसल होता इसके उलट है। जनरल सेक्रेटरी बंद दरवाजों के पीछे डील्स करके पोल्स ब्यूरो के 25 या 30 नाम पहले से सिलेक्ट कर लेता है, ऐसे नाम जो उसके वफादार हों। ये पोल ब्यूरोज अपने असर और रसूख से नीचे की सेंट्रल कमेटी को कामयाब करवाने के लिए लॉबिंग पार्टी कांग्रेस से पहले कर चुकी होती है। इसी तरह सेंट्रल कमेटी के लोग पार्टी कांग्रेस से पहले ही देखभाल कर वो 2300 लोग सेलेक्ट कर चुके होते हैं, जो उनकी मर्जी के लोगों को वोट देंगे। और ऐसे ही सीनियर पार्टी मेंबर्स अपने अपने इलाकों में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने हामियों को ज्यादा से ज्यादा भर्ती करते हैं और मुखालिफ धड़े के अफराद को रोकने की कोशिश करते हैं। सो ये सिस्टम नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे काम कर रहा होता है। वैसे आपको बताएं कि सीपीसी में ऐसा भी होता है कि मुख्तलिफ फील्ड से नामवर और कामयाब लोगों को पार्टी बगैर इम्तिहान से गुजारे भी मेंबर बना लेती है। बस इसके लिए इतना जरूरी होता है कि उस शहर में सीपीसी चीफ और सीनियर मेंबर्स सब मुत्तफिक हों। ये वो सिस्टम है जिससे दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान मुंतखब होता है। चीनी सीपीसी जनरल सेक्रेटरी, चीनी सदर। दुनिया को ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में 6 दिन का जो शो दिखाया जाता है वो इतना मुनज़्ज़म होता है कि कौन कहां से दाखिल होगा, कौन क्या पहनेगा, कौन सा मशरूब किस वक्त पेश होगा, ड्रिंक्स या चाय किस तरह सर्व की जाएगी, किस दरवाजे से कब कौन दाखिल होगा और कब किस दरवाजे से निकलेगा, कौन कहां बैठेगा, कहां तालियां बजाई जाएंगी, हाँ कहने के लिए कौन सा हाथ कितना उठाया जाएगा, कब कौन क्या बात करेगा, जवाब में कौन क्या कहेगा। बस इतनी बारीक तरीन तफसीलात तय होती हैं कि दुनिया में शायद ही किसी और तंजीम के इजलास में ऐसा फिक्स्ड प्रोसीजर होता हो। यही वजह है कि हर 5 साल बाद चीन के मुस्तकबिल के अहम तरीन फैसले करने वाली इस कांग्रेस में एक भी आवाज मुखालफत में नहीं आती। हर करारदाद या फैसले के लिए जब वोटिंग शुरू होती है तो तमाम की तमाम कांग्रेस एक एक मेंबर दायां हाथ आधा उठाकर यस कहता है, फिर एक स्पेशल मेंबर बुलंद आवाज से बोलता है कि सब ने कबूल कर लिया, मुकम्मल हो गया। जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग इतने मजबूत हैं कि 2012 से 22 तक 10 साल वही मुल्क के सबसे बड़े ओहदे सदर पर फाइज थे, वही सबसे बाइख्तियार सीट जनरल सेक्रेटरी पर बैठे थे और वही चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन भी थे। अब भी यही तीनों पोजीशंस इनके पास हैं। चीन में चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का मतलब है फौज का ताकतवर सरबराह। हमारे सदर की तरह रस्मी सदर नहीं, बल्कि एक ऐसा बाइख्तियार सदर जिसके दफ्तर को फौज के इदारे रिपोर्ट करते हैं, वो चीनी सदर और जनरल सेक्रेटरी होता है। आपको यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात बताते हैं। चीन के दुश्मनों की ख्वाहिश रहती है चीन में मार्शल लॉ लग जाए। मगरबी दुनिया में और अभी चंद हफ्ते पहले पार्टी कांग्रेस से कुछ दिन पहले भारत में भी ऐसी अफवाहें फैल गईं कि चीन में मार्शल लॉ लग गया है। भारतीय न्यूज मीडिया का एक खास सेक्शन ऐसी खबरें चला कर हलकान होने लगा कि सदर शी जिनपिंग का तख्ता उलट दिया गया है, फौज ने चीन पर कब्जा कर लिया है, जबकि चीनी फौज का स्ट्रक्चर ऐसा है ही नहीं कि वो मार्शल लॉ लगा सके। इसी साल 15 और 16 सितंबर को SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी शंघाई ताउन तंजीम का इजलास उज्बेकिस्तान में हुआ। ये वही इजलास है जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर पुतिन की मुलाकात ने पाकिस्तान में काफी हेडलाइंस बनाई थी। तो खैर, इस इजलास के बाद हर मुल्क का सरबराह वापस अपने अपने
मुल्क चला गया, लेकिन चीनी सदर कहीं गायब हो गए। अब इसमें अहम बात ये थी कि वो 1000 दिन से यानी तकरीबन 3 साल से किसी गैर मुल्की दौरे पर फॉरेन विजिट पर नहीं गए थे। इनके राइवल्स अमेरिका और भारत ऐसा प्रोपेगेंडा करते थे कि वो मुल्क से बाहर इसलिए नहीं जा रहे कि जैसे ही वो मुल्क से बाहर निकलेंगे पीछे से फौज मार्शल लॉ लगा देगी। इस शक को और भी तकवीत इस वक्त मिली जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास खत्म होने के बाद यानी 16 सितंबर के बाद से उनकी कोई वीडियो, ऑडियो या तस्वीर सामने नहीं आई। उनकी कोई एक्टिविटी भी रिपोर्ट नहीं हो रही थी। सरकारी टीवी पर और अखबारात में एक ऐसा लीडर जो स्कूल निसाब से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन तक में भी अपना नाम और अक़वाल शामिल कर चुका हो, जिसकी इमेज बिल्डिंग के लिए पूरा एक महकमा काम कर रहा हो, तो ऐसे शख्स की कोई भी खबर न आना बहुत हैरान कुन बात थी। जब वो कई दिन तक मंजर आम पर नहीं आए तो इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया के एक सेक्शन ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि चीन में मार्शल लॉ लग चुका है। कुछ ऐसी वीडियोस भी चलाना शुरू कर दी गईं जिनमें चाइनीज मिलिट्री ट्रक और गाड़ियां दौड़ती भागती नजर आ रही थीं, लेकिन ये प्रोपेगेंडा 30 सितंबर को दम तोड़ गया। इनकी एक वीडियो जारी हुई जिसमें वो एक ऐसी चाइनीज एग्जीबिशन में थे जो इन्हीं के 10 साल दौर की कामयाबियां दिखाने के लिए मुनक्किद की गई थी। चीन में कोई जनरल या ऑफिसर्स का एक ग्रुप मार्शल लॉ क्यों नहीं लगा सकता? इसकी बहुत सादा सी वजह है कि चीनी फौज यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि इसे एक जनरल कमान नहीं करता। चीनी फौज को एक कमीशन लीड करता है जिसका चेयरमैन कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होता है। आज के हिसाब से देखें तो शी जिनपिंग फौज के सरबराह हैं। इनके नीचे 2 वाइस चेयरमैन होते हैं जो जनरल रैंक के ऑफिसर्स होते हैं। इनके साथ 4 और 3 स्टार जनरल्स होते हैं जो ग्राउंड फोर्सेस, इक्विपमेंट डेवलपमेंट और डिसिप्लिन वगैरह के इंचार्ज होते हैं। ये मिलकर एक मिलिट्री कमीशन बनता है जिसका चेयरमैन पार्टी जनरल सेक्रेटरी होता है, यानी चीन का सदर नहीं, पार्टी जनरल सेक्रेटरी फौज का सरबराह होता है। इस कमीशन के तमाम मेंबर्स कोई जनरल या फौज का इदारा मुंतखब नहीं करता, बल्कि तमाम अपॉइंटमेंट्स पार्टी जनरल सेक्रेटरी खुद मुंतखब करता है और जब चाहे वो किसी को निकाल भी सकता है और निकालता भी है। अभी आपको मिसाल देते हैं, जब 2012 में शी जिनपिंग पहली बार जनरल सेक्रेटरी बने तो उन्होंने पार्टी और मुल्क से करप्शन खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन शुरू किया। 47 लाख लोगों को एंटी करप्शन कैंपेन में सख्त स्क्रूटनी से गुजारा गया। इनमें से 1 लाख के करीब लोगों को मुजरिम ठहराया गया और सजाएं दी गईं। इस दौरान उन्होंने फौज के सबसे सीनियर ऑफिसर शो काई हू का कोर्ट मार्शल कर दिया था। इन्हें महीनों हाउस अरेस्ट रखकर तफ्तीश की गई। वैसे अपनी सजा के अगले बरस 2015 में वो कैंसर से चल बसे थे। इसके अलावा 1 दर्जन से जायद दीगर सीनियर फौजी अफसरान को भी सजाएं दी गईं, लेकिन शो काई हू चीनी इनकलाब के बाद करप्शन की सजा पाने वाले सबसे बड़े ऑफिसर थे। इस कैंपेन के दौरान शी जिनपिंग पर इल्जाम लगा कि वो करप्ट लोगों को निकालने के साथ साथ अपने राइवल्स को भी खत्म करते जा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम उन्हीं की तरह मशहूर और ताकतवर कम्युनिस्ट लीडर बोजी लाई का था। ये भी शी जिनपिंग की तरह माओ के एक करीबी इनकलाबी साथी के बेटे थे। शी की तरह इन्हें भी प्रिंस कहा जाता था। फिर इनकी करिश्माती शख्सियत नौजवानों में बहुत मकबूल थी। वो दिखने में भी शी जिनपिंग से बहुत हैंडसम थे और पोलिट ब्यूरो में यानी टॉप सियासी पोजीशन में भी शी के राइवल थे। चीन में इन्हें आमतौर पर नेक्स्ट जनरल सेक्रेटरी समझा जाता था। इन्हें पीपल्स लीडर समझा जाता था क्योंकि वो लोगों में बहुत घुलते मिलते थे। मगर एक ड्रामाई कहानी हुई कि पहले इनकी बीवी को एक बरतानवी बिजनेसमैन के कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया और फिर इन्हें भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की करप्शन के इल्जाम में नाअहल करके ताहयात जेल में डाल दिया गया। हो सकता है कि नाअहल किए जाने वाले बोजी लाई वाकई करप्ट हों, हो सकता है बेगुनाह हों, लेकिन आप जानते हैं कि लोगों की नजर में परसेप्शन अहम होता है, हकीकत नहीं। तो शी जिनपिंग की एंटी करप्शन मुहिम और हो जनताओ को मीटिंग से
निकाल देने के वाक़े के पीछे ये तासुर कायम है कि उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर उस शख्स को पार्टी से निकाला जो उनकी ताकत को या उनके फैसलों को चैलेंज करने की सलाहियत रखता था। 2012 से अब तक जो भी हुआ उसने शी जिनपिंग को चीन का एक ऐसा लीडर बना दिया है जिसने रोड एंड बेल्ट का सुपर पावर प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया है, जिसका सीपैक भी एक हिस्सा है, जिसने अपने तमाम पॉसिबल राइवल्स को मैदान से आउट कर दिया है और आज वो माओ जेडंग के बाद चीन के सबसे ताकतवर लीडर हैं। किसी ने चीन पर 15 साल हुकूमत नहीं की माओ के बाद, लेकिन शी जिनपिंग 10 साल मुकम्मल करने के बाद अगले 5 साल के लिए भी अपनी सीट और टीम पक्की कर चुके हैं। चीन में 2 दफा से ज्यादा सदर न बनने की शर्त भी उन्होंने खत्म कर दी है। जनरल सेक्रेटरी की 2 टर्म एक रिवायत थी जिसे उन्होंने 20वीं पार्टी कांग्रेस में अमलन मुस्तरद कर दिया और इस वक्त 3rd टाइम जनरल सेक्रेटरी वो हैं। उम्र की हद भी उन्होंने अपने ही दौर में खत्म करवा दी थी। सो अब वो कानूनी तौर पर जब तक चाहें चीन पर हुकूमत कर सकते हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने शी जिनपिंग को कभी ना खत्म होने वाली ताकत सौंप दी है, यानी वो एक डिक्टेटर किस्म के लीडर बन चुके हैं जो खुद जब तक चाहेंगे इक्तदार में रहेंगे। YouTube एक बहुत बड़ी दुनिया है और आप हमें कहाँ ढूंढते फिरेंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचाई जा सके, क्योंकि इल्म जरूरी है।